Thanks, Mayank sir. You all are well aware of the tough situation the whole world is facing due to coronavirus. It has made all of us to sit within the four walls. Our education system has really suffered significantly. But thanks to online platform, which have broke the surface tension of learning in the classrooms only and brought all of us together on this online platform of learning. I hope this lecture series will be quite beneficial to all of you and you will learn a lot. Now I request Dr. Jiten Tripathi, HOD Physics, to inform you all about this expert lecture series. Tripathi Thank, sir, please. thank you, ma'am. Respected Dubey ji, Velenka sir, मेरे colleague, Usha madam, students and all participants. ये हमारा जो लेक्चर सीरीज है एक्सपर्ट लेक्चर सीरीज ऑन फिजिक्स फॉर क्यूरियस माइंड्स, ये हमारा बहुत दिनों से लॉन्ग ड्यू एक वेब सीरीज था. हम लोग इसको करना चालू चाह रहे थे, बट समाओ ये दिस कोरोना पेंडेमिक और दूसरी चीजों के कारण डिले होता गया. बट नाउ वी स्टार्टेड, हमने स्टार्ट किया इसको. और ये जो बेसिकली मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हम इसको 6 महीने तक कंटिन्यू चलाने वाले हैं. 6 मंथ लॉन्ग जर्नी रहेगी और हर मंथ में हम यहाँ पे एक या दो जो लेक्चर हैं वो हम अरेंज करेंगे, अलग अलग फील्ड से लेकर आएंगे हम लोगों को. जैसे पहला लेक्चर जो हमने एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पे रखा है, क्योंकि हम सारे फिजिसिस्ट करके देखना चाहते हैं कि जब तक करके नहीं देखते तो हम मानते नहीं है. इसलिए हमने ये उसको स्टार्ट करने के लिए हम दुबे जी आए, हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट दुबे सर ने बनाए हैं और वो हम लोगों को बताएंगे. और हम इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, 6 महीने तक लेकर जाएंगे आगे. हर नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसके बारे में भी आपको बता दूं, डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं हमारे डॉक्टर संदीप चौबे, वो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे. मिसाइल टेक्नोलॉजी पे उन्होंने काफी काम किया है, अभी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स पे काम कर रहे हैं. तो जो नेक्स्ट जो सीरीज रहेगी उस पे डॉक्टर संदीप चौबे आके बताएंगे. और जब भी हमारी जो अगली नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके बाद जो नेक्स्ट होने वाला होगा वो हम उसमें आपको बता देंगे कि अगली बार कौन सा होगा. डेट प्रोबेबली जनवरी फर्स्ट सेकेंड वीक में रहेगा जो सेकेंड लेक्चर सीरीज रहेगा. तो आज हम स्टार्ट करते हैं. अच्छी शुरुआत जो रहती है वो हरदम आगे हमको प्रेरणा देती है अच्छा काम करने के लिए. इसलिए हम अपने जो सबसे अच्छे जो आप लोगों को इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं फिजिक्स में, हमारे दुबे सर, इसलिए हम उनको लेकर आए हैं. तो दुबे सर वेलकम, थैंक यू. और हम जुड़ते रहेंगे 6 महीने तक कंटिन्यू ऐसे. थैंक यू वेरी मच. Thanks, Tripathi sir. As you all know, our today's first speaker is Professor P.K. Dubey, and topic of his lecture is Refreshing Physics Concepts Through Experiments. There is a lot to tell about him, which is not possible to cover in the short span of time. Still, I call upon Dr. Anjali Jain Devtale to give Professor Dubey's brief introduction. Anjali, please. Good afternoon to our most distinguished speaker of the day, Dr. Pradeep Kumar Dubey, Dr. Jitendra Tripathi, HOD Physics, Velankar sir, faculties, students, and all the members assembled on this digital platform for this expert lecture series on physics for curious minds. I, Dr. Anjali Jain Devtale, on behalf of Physics Department, Institute of Science and Research, IPS Academy, feel honored to get an opportunity to introduce our today's speaker, Dr. Pradeep Kumar Dubey. Dr. Pradeep Kumar Dubey is a former head Physics Department, PMB Gujarati Science College, Indore. He has completed his BSc and MSc from Vikram University. He has done his PhD in accelerator physics from RGPV Bhopal. He has more than 35 years of teaching experience in undergraduate and 20 years of experience in postgraduate level. Aside from his talent, Dr. Pradeep Kumar Dubey published more than 20 research publications in national and international journals. He is also a prestigious author of number of books of undergraduate level. He is a life member of IPA, Instrument Society of India, Glass Blowing Society of India, President Central India Region, and also an EC member of IAPT. He has delivered more than 20 invited talks in various universities, colleges, and higher secondary schools. At last, I want to say that he is also a fascinating individual and we are grateful for his presence among us today. Without further delay, please join me in welcoming Dr. Pradeep Kumar Dubey. Thank you, sir, for being with us. Thank you, sir. Thanks, Anjali.
I would like to add that he is very active member of Indian Association of Physics Teachers and keeps on organizing a number of programs for the benefit of the students. Now we will commence our program. If somebody has any queries, kindly post it in the chat box and we will discuss it in the end. Dubey sir, kindly start your lecture, please. थैंक यू मैडम। मैडम मरवा सर आ गया क्या? मारवा सर देखना पड़ेगा सर, एक मिनट। क्योंकि वो उन्होंने फोन किया था कि मुझे अभी अंदर नहीं ले रहे हैं। सर हम तो सबको ले रहे हैं जो भी आ रहा है। यस यस। हाँ वैसे there are about 195 हो गए हैं सर। 195 participants are there. Okay. Now 196. मारवा सर तो मुझे दिख नहीं रहे हैं। नहीं दिख रहे मैडम। हाँ उनका फिर फोन आ गया मेरे पास। अच्छा उनसे बोलिए ज्वाइन करेंगे सर, हम इन कर लेंगे उनको। हाँ कोई और आईडीज होंगे तो पता नहीं, बट नाम से तो नहीं दिख रहे सर। नाम से नहीं दिख रहे हैं सर। और पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है अपने नेम से ज्वाइन करें, क्योंकि कुछ लोगों ने अलग से नाम से ज्वाइन किया है तो वो हमको पता नहीं लगेगा। जैसे CS रोल नंबर 73 ऐसे ना ज्वाइन करें, अपने नाम से ज्वाइन कर लें प्लीज। So first of all, I want to congratulate Professor Tripathi, Professor Usha Singh for organizing this wonderful lecture series. And as the objective of IAPT is to promote the physics teaching and physics teachers also. So what we are doing, we are organizing so many programs related with school students, teachers, college teachers, and we are going from villages to villages, interior places, छोटे छोटे गांव में जाते हैं। So एक दिन मैंने सोचा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, सब छोटे छोटे गांव में जाना, एक अपना झोला लेके चले जा रहे हैं। So मैंने जब थोड़ा शांति से सोचा तो मेरे मस्तिष्क में दो नाम आए, एक तो प्रोफेसर वेलनकर साहब और अनदर इज प्रोफेसर श्रीवास्तव ऑफ विक्रम यूनिवर्सिटी। वेलनकर साहब ने मुझे BSc में कुछ इस तरीके से प्रैक्टिकल कराए, पकड़ पकड़ के प्रैक्टिकल कराए, और ऐसा ही जो है वो BD श्रीवास्तव साहब ने विक्रम यूनिवर्सिटी में किया। तो मेरा इंटरेस्ट जो है प्रैक्टिकल्स में होता रहा, और धीरे धीरे जब मैंने बहुत सारे लोगों के प्रोग्राम्स देखे तो मुझे लगा कि मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे टीचर्स को तैयार करना चाहिए जो गांव में जाकर इनको डिमॉन्स्ट्रेट कर सके। तो आज जो है मैं आपको सिर्फ वो टेक्निक्स बताऊंगा कि कैसे हम इन इंस्ट्रूमेंट्स, इन सेटअप को बना सकते हैं बहुत कम पैसे में, और अपने घर के सामान से ही चीजें जो है वो इजीली डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। सो अगेन एक बार फिर से त्रिपाठी जी, सिंह मैडम और वेलेंद्र साहब को धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं। हम नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल अगर पास रखते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और पर हम जब उनको रिपेल करते हैं तो उनको आसानी से देख नहीं पाते। ये अगर दो मैग्नेट है मेरे पास तो ये रिपेल तो कर रहे हैं, पर अगर इसको मैं छोड़ देता हूं तो इट विल टर्न। अच्छा, ये मैग्नेट्स आपको आसानी से आपके घर में जो स्पीकर्स रहते हैं उसमें मिल जाएंगे, या आप किसी कबाड़े वाले के पास जाएंगे, देन यू विल फाइंड देयर, वो आपको आसानी से 10-20 रुपए में मैग्नेट्स इजीली दे सकता है। तो और ये मेरे पास जो मैग्नेट्स हैं, ये माइक्रोवेव ओवन का जो मैग्नेट्रॉन होता है उसमें से निकाले हैं। माइक्रोवेव तो ये बहुत पावरफुल मैग्नेट है, और इनको जब हैंडल करते हैं तो बड़ा केयरफुली हैंडल करना है ताकि ये कहीं आपकी स्किन जो है उस मैग्नेट के बीच में ना आ जाए।
अगर आपने इनको पास पास इस तरीके से अगर रखे हैं, ये मैडम दिख रहा है बराबर? हाँ जी, बराबर दिख रहा है सर। तो इसको आपको अगर रिमूव करना है तो आप इसको इस तरीके से खींच के मत करिए, इसको स्लाइड करिए, ठीक है। और इन मैग्नेट्स को उस मैग्नेट्रॉन से निकालना बहुत बड़ी रिस्क है। ये मैग्नेट जो है एक ट्यूब पर फिट, ट्यूब के ऊपर रहते हैं, और जहां ये इस पोजीशन में कहीं रहते हैं, तो जहां मैग्नेट है वहां एक सिरेमिक कोटिंग रहती है। उस सिरेमिक कोटिंग के अंदर बेरिलियम ऑक्साइड नाम का एक मटेरियल रहता है। तो ये मैग्नेट्रॉन जो है वो फिक्स किया हुआ रहता है, कहीं उसमें स्क्रू वगैरह नहीं रहते हैं। तो उसको जब हम खोलते हैं तो हमारा स्क्रू ड्राइवर या प्लायर गलती से भी उस सिरेमिक कोटिंग को टच नहीं होना चाहिए। अगर उसको टच हो जाता है या वो सिरेमिक कोटिंग ब्रेक हो जाएगी, तो उस परिस्थिति में उसके अंदर जो बेरिलियम ऑक्साइड है वो बाहर आ जाएगा, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है, यानी वो उससे कैंसर भी हो सकता है। तो ये मैं इस पे रख के आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये आप इस तरीके से इनको बता सकते हैं कि दो नॉर्थ पोल के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है वो किस प्रकार का होगा, और उसको हम जब गांव के बच्चों को बताते हैं। एक्चुअली मेरे आज के इस लेक्चर का पर्पस ये है कि जो भी लोग देख रहे हैं वो इनको बनाने की कोशिश करें, और इसको जो है जब भी उन्हें समय मिले वो स्कूल में जाएं, कोशिश करें कि वो इंटीरियर के स्कूल में जा पाए। तो ये इस पोजीशन में, अब अगर मैंने इसको चेंज कर देता हूं मैं हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पे, तो आप देखिए ये इनमें जो है ये रिपल्सिव फोर्स और स्ट्रांग हो गया, ये और दूर दूर हो गए। इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम जो है अगर एक अच्छी ग्लास की ट्यूब ले तो उस पे ये आपको अलग तरीके से दिखेगा। देखिए मैंने इसको अभी रखा है हॉरिजॉन्टल, और अगर मैं इसको थोड़ा शिफ्ट भी करता हूं तो ये वापस जो है अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। अगर मैं इसको इस पोजीशन पे रखता हूं तो इस पोजीशन पे नीचे वाला मैग्नेट तो मेरी फिंगर के ऊपर टिका हुआ है, ऊपर वाला जो है इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। मैंने वेलेनकर साहब के कई लेक्चर सुने, उसमें कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे कि अगर इस पोजीशन में रखें तो गैप इतना है, अगर इस पोजीशन में रखते हैं तो ये गैप बढ़ जाता है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है जरूर, अब ये कितना पावरफुल है या कितना वीक है, इससे हम इसको थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करें। तो ये तो एक दो मैग्नेट्स को किस प्रकार हम नॉर्थ पोल में रिपल्शन होता है ये बता सकते हैं। मैं आता हूं इसमें एक बहुत ही बढ़िया चीज है, जब हम कुर्सी पे बैठते हैं तो कुर्सी पे से गिरते नहीं है, तो उसमें सेंटर ऑफ मास का रोल है। सेंटर ऑफ मास यानी पूरी अपने शरीर का द्रव्यमान मास जो है एक बिंदु पर अगर केंद्रित मान लें और उससे एक लाइन नीचे की ओर खींचें तो वो कुर्सी की चार टांगों के बीच से गुजरती है। तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कुछ सेटअप की मदद से हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। और सेंटर ऑफ मास जनरली जो 9th-10th में पढ़ाया जाता है, और गांव में बच्चों को जो है इसको बताएं तो उन्हें उससे बहुत ही आनंद मिलता है। अच्छा, मैं यहाँ जो कुछ बता रहा हूँ वो आप उसे ऐसा मत मानिए कि ये सब मैंने ही किया है। ये मैंने पता नहीं कहाँ से इनको नकल की है, किन लोगों से, किन लोगों ने मेरी इसमें, कई लोगों ने इसमें मदद की है। तो एक ये क्वेश्चन मार्क है, ये कार्डबोर्ड का एक पीस है
जो आप किसी भी मुल्ला जी की दुकान पे जाएंगे, वहां एक कटर रहता है, उससे वो इस शेप में इसको काट के बता देंगे, आपको दे सकते हैं। और ये एक बेल्ट है। अब हम इसको, मैं चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ये इस फिंगर के ऊपर टिक जाए। मैं ये इस हाथ से इसको छोड़ दूं और ये टिक जाए। इस परिस्थिति में अगर हम कोशिश करेंगे तो ये नीचे गिर जाएगा। तो मैं एक बेल्ट की मदद लेता हूं। आपको एक बेल्ट दिख रहा होगा, इसको मैंने इस क्वेश्चन मार्क पे फिक्स कर दिया और ये मेरी फिंगर पे जो है इसको मैं टिप को रखता हूं तो ये इस पे टिक जाता है। मैं आपको इसका क्लोजअप बताने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये फिंगर के टिप पे लगा हुआ है और ये बेल्ट पूरा जो है नीचे इसी पे लटका हुआ है। तो इसमें हमको ये देखना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां से गुजर रहा है। इसमें जो संतुलन की अवस्था है वो इस प्रकार प्राप्त होगी। तो आज मैं आपसे ज्यादा फिजिक्स डिस्कस नहीं करूंगा। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि हम कुछ ज्यादा से ज्यादा सेटअप में आपको बता पाऊं ताकि आप उसको जो है देखकर बना सके। ये आसानी से आपको कार्डबोर्ड का टुकड़ा कहीं से भी मिल जाएगा। इसका जो शेप है ये मैं आपको पेपर पे ड्रॉ करके और व्हाट्सएप के जरिए A4 साइज के पेपर पे भेज सकता हूं, तो आप इस टुकड़े को बना सकते हैं। बेल्ट हमारे पास सभी के पास है। बेल्ट थोड़ा सा अगर चमड़े का हो तो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये एक पाइप है मेरे पास। तो इस डिमॉन्स्ट्रेशन को मैंने हम हाउस रेनोवेशन करते हैं, मकान में थोड़ा सुधार करते हैं। कोई छोटा कमरा है तो उसे बड़ा करने की कोशिश करते हैं, कहीं का बीम जो है वो शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, दीवार को हटा देते हैं और उसमें जो है दुर्घटना होती है। और ये जो तो हाउस रेनोवेशन में हमें क्या ध्यान रखें कि वो हाउस जो है रेनोवेट भी हो जाए और दिक्कत भी नहीं हो। तो ये एक एल्यूमिनियम पाइप है। एक्चुअली मैं दूसरे डेमोन्स्ट्रेशन में यूज करता हूं इसको। तो मैं इसको मेरी फिंगर पे इस तरीके से रखता हूं, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास जो है यहां से गुजर रहा है। अब मैं इस फिंगर को इस सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं राइट। अब इस दूसरी उंगली को मैं इस एंड पे रखता हूं। अब देखिए, अब मैं इस फिंगर को आसानी से घुमा रहा हूं। इस फिंगर को घुमाने से ये पाइप जो है इसमें बराबर जो है अब मैं चाहूं कि अगर इधर वाली उंगली को मूव करना चाहूं तो ये उंगली जो है मैं कोशिश करता हूं, ये वाली फिंगर मूव तो हो रही है मगर ये पाइप को भी साथ ले जा रही है। फिर से देखिए आप, इसका मतलब ये कि ये जो सेंटर ऑफ मास के पास वाली जो फिंगर है इसको अगर हम शिफ्ट करना चाहें तो ये शिफ्ट नहीं होगी। इसको शिफ्ट करेंगे तो ये पूरा पाइप जो है इसके साथ घूमेगा। अगर इस पाइप के बजाय अगर आप एक 100 सेंटीमीटर की स्केल लेते हैं तो उससे इसको ज्यादा अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। यानी अगर इस फिंगर को जब आप मूव करने की कोशिश करेंगे तो वो स्केल नीचे गिर जाएगी। मतलब आपको पहले उस हाउस का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब अगर शेप रेगुलर है तो सेंटर ऑफ मास आ जाएगा और इरेगुलर है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगी। तो पहले आप ये देख लीजिए कि उसमें कहाँ पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है अप्रोक्सीमेटली। तो उसके पास की दीवार या बीम वगैरह जो है उससे छेड़खानी करने के पहले हम अगर ये चीज देख लें तो वो रेनोवेशन भी हाउस हो जाएगा और हम उससे कोई दुर्घटना नहीं हो। तो ये भी जो है एक सेंटर ऑफ मास की हेल्प से हम इसको देख सकते हैं। देन एक सेटअप है, आपने
बाजार में कई बार देखा होगा कि नट लोग रहते हैं, रस्सी बंधी रहती है, उस पे एक लड़की जो है वो चलती है और बड़ी आसानी से वो उसके ऊपर घूमती रहती है और नीचे नहीं गिरती। तो हम उसी को देख के ये एक स्टैंड है, मुझे लगता है अब आपको दिख रहा होगा पूरा स्टैंड, और इस स्टैंड पे एक वायर लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं कोशिश करता हूं कि इस स्टैंड पर एक कंप्यूटर की जो गोल सीढ़ी आती है उसको टिका दें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ जी सर, आ रही है। अच्छा, मैंने ये तो हेडफोन अलग रख दिया था, उसके बाद भी आवाज आ रही थी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक स्टैंड है, इसमें एक वायर लगा है जो करीबन 1.5 मिलीमीटर का है। आपके घर में वायर इजीली मिल जाएगा। इसको आप किसी भी वुडन पीस के साथ जो है वो चिपका सकते हैं, किसी भी एडहेसिव से या क्विक फिक्स वगैरह से इसको चिपका दीजिए। अब इसके ऊपर जब हम एक सीढ़ी रखने की कोशिश करते हैं, ये सीढ़ी अगर हम इसके ऊपर रखते हैं तो ये सीढ़ी इस पर टिकेगी नहीं। अब इस पे नहीं टिकेगी तो इसको हम देखते हैं कि इस पे क्या कर सकते हैं। जब वो लड़की रस्सी पे चलती है तो उसके दोनों हाथ फैले हुए रहते हैं और वो अपना संतुलन उस पे बनाती है। उस अपना सेंटर ऑफ मास जो है, उसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है बॉडी का, वो इस तरीके से रखती है कि जो वर्टिकल लाइन, जो डाउनवर्ड लाइन है, वो उसको गिरने से रोकती है। तो इसमें इस सीढ़ी में 2 हाथ बनाना है। 2 हाथ बनाने के लिए ये जो है अपने कपड़े धोने के बाद जब हम उनको सुखाते हैं तो ये क्लिप यूज करते हैं हम। तो ये जो है मैंने 4 क्लिप ये लिए और 4 क्लिप दूसरे लिए, तो ये दोनों जो है वो उसके हाथ हो जाएंगे। हम इनको इस सीढ़ी इस पे जो है इस तरीके से लगाते हैं। इसमें एक को इधर लगा दिया और एक को इधर लगा दिया। तो अंदर जाए और इसको मैं इस पे रखता हूं। थोड़ी कोशिश करना पड़ेगी। तो ये सीढ़ी जो है हम इसके ऊपर रख सकते हैं और इसको अगर हल्के से थोड़ा सा एयर ब्लो करेंगे तो ये घूमती भी है। थोड़ी प्रैक्टिस करने पे आप जो है इसको कितनी जोर से फूंक मारना है ये आपकी समझ में आ जाएगा। अब इसमें जो टेक्निक है वो ये है कि आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ये जो क्लैंप है मैंने इस साइड में लगाया है और इसमें जो है वो इस साइड में लगा है।
मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, ये बहुत ही कम वेट वाले क्लैंप पे अगर आप थोड़े भारी लेंगे तो आपको इस पोजीशन में भी रख के आप इस पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी भी हो सकता है पर उसमें आपको ज्यादा मेहनत लगेगी। अब एक जो है सेंटर ऑफ मास के लिए ये तो हमने इसको वर्टिकल रखा, इसको हम हॉरिजॉन्टल रख के भी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। अब मैं देखिए मैंने क्लैंप को टर्न कर दिया, ये इधर है तो ये भी इसी तरीके से है। मैं इसका क्लोजअप बताता हूं आपको। सीडी जो है, यानी आप इसको वर्टिकल भी रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं। आपने कहीं खिलौने की दुकान पे देखा होगा कि एक चिड़िया है, वो उसकी चोंच पे टिकी हुई है, उसके दोनों पंख फैले हुए हैं, चोंच जो है एक पॉइंट पे टिकी हुई है। और तो ये एक उसी का एक एग्जाम्पल है कि इधर के दोनों उसके पंख हैं और ये इसको हमने, ये चिड़िया की चोंच यहाँ पर है और इससे इसको हम जो है डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो ये इसके डिमोन्स्ट्रेशन के लिए भी आपको कोई सामान बाहर से लाना नहीं है, आपके घर में मिल जाएगा, क्लैंप मिल जाएंगे और ये पुरानी कहीं से आपको सीढ़ी मिल जाएगी और एक वायर चाहिए करीबन 1.5 मिलीमीटर का, तो ये भी आपके लिए इजीली अवेलेबल है। फिर हम जो है, मैं शिफ्ट होता हूं फेराडे लॉ पे। मतलब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कि चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और अगर ये किसी कंडक्टर या कॉइल या मटेरियल उसमें रखा हुआ है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो एक सिंपल सा तरीका बच्चों को बताने के लिए कि एक कॉइल है, इसमें से जब अगर मैग्नेट गुजरता है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा और उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो नॉर्मली स्कूल के बच्चों को गैल्वेनोमीटर के बारे में आइडिया रहता है, तो आप गैल्वेनोमीटर की भी चर्चा करिए उनसे, उसमें वो बताएंगे आपको कि इसका जीरो जो है वो सेंटर में होता है और ये करंट की डायरेक्शन बताने के काम में उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए अगर ये लाइट की पोजीशन में आपको ये एक नियोडिमियम मैग्नेट है जो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं और इसको जब हम इसमें से गुजरता है तो आपको इसमें ग्लो दिखना चाहिए। मैडम दिख रहा है ग्लो? हाँ, नहीं ग्लो नहीं दिख रहा सर, थोड़ा सा घुमाइए आप। हाँ, हाँ अब दिखा। एक मिनट मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। अब देखिएगा, बहुत क्लियर दिख रहा है सर। तो इसको बनाने का अभी तरीका बहुत आसान है। आपके यहाँ इनविटेशन कार्ड आते हैं, उसका एक पाइप बना लीजिए आप और एक बाबिन ले लीजिए, उस पे ऑयल लपेट दीजिए, उस पे जो है एक एलईडी लगा लीजिए आप। तो आप जो है
ये बता सकते हैं कि जब मैग्नेट किसी कॉइल से गुजरता है तो कॉइल में जब करंट इंड्यूस्ड होता है तो उसे हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें रहती हैं। लॉरेंज फोर्स, तो गांव में जब मैं जाता हूं तो बच्चों से पूछता हूं कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है, तो पहले तो बच्चे बोलते नहीं है, फिर थोड़ी सी और कोशिश करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि भाई एक अच्छा प्रश्न पूछोगे तो आपको जो है एक पेन जो है वो इनाम में दिया जाएगा। फिर धीरे से एक बच्चा बोलता है कि वो कोई आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र में उसे गुजरता है तो उस पर एक बल लगता है। अब जब आवेशित कण गुजरता है, मतलब लॉरेंज फोर्स पे डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हम बच्चों से ही मुंह से उनके निकलवाते हैं कि लॉरेंज फोर्स का अगर डिमॉन्स्ट्रेशन करना है तो क्या क्या चीज चाहिए। तो बच्चा बोलता है कि एक आवेशित कण चाहिए, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो उस पे एक बल लगेगा। तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए फिर उस समय तक वो बच्चा ये नहीं बोल पाता है कि मोशन ऑफ चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, ये तीनों परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो उस समय वो उनको फिंगर की मदद से वो डायरेक्शंस जो है बताना है और उनको एक रफ आइडिया बताना है कि ये लॉरेंज फोर्स का डेमोन्स्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो एक उनकी एक मैग्नेट लिया, ये आपको बहुत सारे मैग्नेट दिख रहे होंगे, आप इसमें से एक या दो मैग्नेट लेके भी इस प्रयोग को आसानी से कर सकते हैं। और अब हमें आवेशित कण चाहिए, तो आवेशित कण में उससे पूछते हैं क्या हो सकता है, वो बोलता है इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो उन्हीं से जो है कोशिश करते हैं कि वो कहीं से इलेक्ट्रॉन के लिए बोले कि सम इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल जाएगा, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं मिलेगा, न्यूट्रॉन नहीं मिलेगा, पर इलेक्ट्रॉन कैसे मिल सकता है। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं तो धीरे से बोलता है कि सब जब धारा बहती है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो इंटरनेट नहीं चल रहा शायद आपका। हाँ ठीक है, नहीं चल रहा है मैडम। हाँ अब चालू हो गया। हाँ सर। हाँ, हाँ ये कभी कभी दिक्कत आती है। हाँ कोई बात नहीं सर, ये भी तो जरूरी है। वो जैसे ही वो कहता है कि हाँ इसमें करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी फ्लो होंगे, तो हमें इलेक्ट्रॉन जो है तो एक उसके लिए एक कंडक्टर चाहिए। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको, ये कुछ एम शेप का एक वायर कर रखा है, और अब इसमें जब धारा बहना चाहिए तो फिर हम उसी से पूछते हैं कि इसको धारा प्रवाहित करने के लिए क्या करें। तो फिर वो कहता है कि एक बैटरी चाहिए। तो हम जो है ये एक ड्यूरासेल यूज करते हैं। ड्यूरासेल को यहाँ पर हमने लगाया और इसमें करंट फ्लो होना है। ये मैग्नेट जो है और ये, तो इसका जो टिप है, ये एम शेप का ये जो टिप है, इसको मैं इस सेल के टिप पे रख देता हूँ और ये नीचे वाला पोर्शन मैग्नेट से टच होगा तो ये घूमने लगता है। अब ये घूमने लगता है मतलब हमने कुछ नहीं किया, हमने इस सेल के अपर टर्मिनल और लोअर टर्मिनल पे वायर लगा दिया। अगर उसको कंटिन्यूस लगा है वो तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और वायर भी गर्म हो जाएगा और सेल भी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये जो एम शेप वायर है ये कभी नीचे के मैग्नेट को टच होता है, अभी जैसे ये टच नहीं हो रहा तो इसने घूमना बंद कर दिया। अब ये जैसे ही टच होगा तो ये फिर घूमना चालू कर देगा। अब ये फ्रीली जो है यहाँ पर रखा हुआ है
अगर ये फ्रीली रखा हुआ है तो ये अगर आपने नया सेल लिया तो ये गिर भी सकता है। तो इसका मूवमेंट जो है वो कंस्ट्रेंट करने के लिए कि ये इसी टिप पे रहे, हम जो है ये वाइसर जो है इसके ये देखिए वो गिर गया। तो ये जो वाइसर है ये इस पे रख देते हैं। देखिए इसका थोड़ा क्लोजअप बताता हूं मैं आपको। ये वाइसर जो है ना मैंने इस यहाँ पर दो वाइसर रख दिए, और चूंकि वाइसर के बीच में होल रहता है तो ये जो टिप है ये अब जो है इसी के बीच में रहेगा। ये कॉइल जो है ये फ्रेम जो है ये घूमती रहेगी। ये वायर दिख रहा है मैडम? हाँ जी सर, दिख रहा है, घूमते हुए दिख रहा है। हाँ हाँ, बकायदा दिख रहा है। अब आप इसको डिफरेंट शेप दे सकते हैं। एक मैंने इस तरह का शेप बनाया, इसको यहां रखते हैं। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि आप इसको जब डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करें तो ये चली जाए। कई बार इनके कांटेक्ट बराबर नहीं होने से ये नहीं भी चल पाते हैं। और चूंकि ये सेल शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो डिस्चार्ज भी हो जाता है। सेल देखिए अब ये तेजी से घूम रहा है, और इतनी तेजी से घूम रहा है कि कई बार इसको जो है नीचे वाले मैग्नेट का जो एंड है उसका वहां वो टच नहीं हो रहा है, पर उसमें मोमेंटम है तो गोल घूमता रहेगा। इससे आप उसको सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट भी समझा सकते हैं कि ये डिफरेंट प्लेन में घूमने के बाद भी जो है इसका सेंटर ऑफ मास इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है कि ये इसमें संतुलन की अवस्था बनी रहती है। देखिए ये मतलब ये अपने हिसाब से चूंकि ऊपर वाशर रखा हुआ है तो ये उसको टिप का मोमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया, और ये किसी भी परिस्थिति में जो है तो आप इसको डिफरेंट शेप्स में बना के और कर सकते हैं। अगर हम जो है सेल को रिप्रेस कर रहे हैं तो इसकी मूवमेंट जो है और फास्ट हो जाएगी। मैंने एक हेवी वायर का बनाया है, देखते हैं ये चलता है या नहीं चलता है। बहुत दिनों से रखा हुआ है, इस पे रस्टिंग भी हो चुका है, पर फिर भी जो है ये नया सेल लगा है इसलिए तेजी से घूम रहा है।
ये दिख रहा है मैडम बराबर? हाँ जी, दिख रहा है सर। अब ये कॉइल को कैसे बनाना, तो आप जो मैग्नेट यहाँ रखते हैं उस पे आप वायर को लपेट दीजिए एक बार, और उसको अपना जो ये पेपर रहता है इससे उसके टर्मिनल्स को थोड़ा क्लीन करिए। ये क्लीन करना बहुत जरूरी है। ये लकीली जो है ये बहुत दिनों से रखा हुआ था, उसके बाद भी चल रहा है, कई बार नहीं भी चलता है। ये आपको अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो होमोपोलर मोटर के नाम से मिलता है। अब इसमें जो है अभी जो है ये कॉइल फ्री है तो कॉइल घूम रही है। अब मैं चाहता हूं कि कॉइल ना घूमते हुए मैग्नेट घूमे। मतलब मैग्नेट को हमें कुछ ऐसी स्थिति में रखना होगा कि वो जब ऊपर और नीचे के टर्मिनल्स को हम एक वायर से कनेक्ट करें तो मैग्नेट का मूवमेंट हो। अभी कॉइल फ्री है इसलिए कॉइल घूम रही है, उस केस में मैग्नेट को घूमना चाहिए। हम कोशिश करते हैं। तो मैंने एक स्क्रू लिया और इस स्क्रू को ये मैग्नेट के साथ, ये एल्यूमिनियम, थोड़ा इसमें शायद आयरन भी होगा, और इससे इसको फिक्स किया और इसको हम इससे सस्पेंड कर सकते हैं। देखिए अब अगर इसके ऊपर के टर्म सेल के ऊपर के टिप से अगर मैग्नेट को एक वायर से जोड़ा जाए तो ये नीचे जो मैग्नेट है कहीं ना कहीं तो फोर्स लगेगा, लॉरेंज फोर्स। वहां वायर फ्री था तो उस पे लग रहा था, इस पे भी लगेगा। तो देखते हैं ये घूमता है या नहीं घूमता है। ये सेटअप जो है बड़ा मूडी रहता है, ये कभी कभी काम करता है और कभी कभी बिल्कुल काम नहीं करता। देखते हैं, मैं कोशिश करता हूँ। इसमें दिक्कत ये आती है कि शॉर्ट सर्किट होने से वहां थोड़ा सा हल्का सा स्पार्क होता है और वो वायर वहां से उसमें कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, तो फिर वो काम नहीं करता है। देखिए अभी घूम रहा था ये। सर उतना क्लियर तो नहीं दिख रहा है, मतलब घूमते हुए नहीं दिख रहा है। घूमते हुए नहीं दिख रहा। ठीक है, कुछ उसका अरेंजमेंट करता हूँ मैडम, एक 2 मिनट में।
ये मैंने दो मैग्नेट के बीच में एक पेपर लगा दिया है, तो ये पेपर जो है घूमेगा, अगर ये मैग्नेट घूमेगा, और इस सेल को रिप्लेस कर दिया। कई बार शॉर्ट सर्किट होने से सेल जो है वो खत्म हो जाता है। हाँ जी सर, अब क्लियर है, दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। थोड़ा सा इसको मैं पेपर से साफ कर देता हूँ। हाँ जी, क्लियर दिख रहा है सर। क्लियर है। कुछ रोटेट होते हुए दिखता है आपको? ठीक है मैडम, घूम रहा है, घूमते हुए दिख रहा है आपको? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया दिख रहा था सर। हाँ, वो एक्चुअली इसमें जैसे ही थोड़ा सा भी स्पार्क हुआ तो बस वहाँ फिर कार्बन आ जाता है। कोई बात नहीं सर, बढ़िया हो गया है डिमॉन्स्ट्रेट। अब आप चाहें तो अभी हमने इस वायर जो है रोटेट हो रहा था, और पहले जो किया उसमें ये फ्रेम घूम रही है, फिर हमने जो है मैग्नेट को रोटेट किया। अब हम चाहें तो इस बैटरी को भी रोटेट कर सकते हैं, बैटरी को भी रोटेट कर सकते हैं, इसको फ्री कर। इसमें क्या करना होगा कि एक मैग्नेट, इस नियोडियम मैग्नेट इधर रखना होगा, एक इधर रखना होगा, और चूंकि इसको फ्री रखना है तो और इन दोनों में कांटेक्ट भी होना चाहिए।
तो एल्यूमिनियम शीट को टेबल पे फैला दीजिए आप। थिक एल्यूमिनियम शीट आपको मार्केट में मिल जाएगी और इसको उस शीट पे छोड़ दीजिए। ये बिल्कुल स्ट्रेट वे में जो है ये मैग्नेट, ये सेल जो है घूमता हुआ आगे बढ़ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सीधा नहीं जाए तो इधर एक आप एल्यूमिनियम का वॉशर जो है बड़े वाला लगा दीजिए, इधर छोटा लगा दीजिए, तो ये वहीं गोल गोल जो है वो घूमता रहेगा। तो ये लॉरेंज फोर्स इस तरीके से हम जो है डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। अब उसमें बच्चे को ये बताना है कि वो बच्चा पूछता है कि सर ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो पहले मैं उससे ये कहता हूं कि पहले हम कोशिश तो करके देखें कि अगर ये इस पे फोर्स लगता है तो ये वायर का जो फ्रेम हमने बनाया है ये घूमेगा। एक फोर्स एक साइड पे लगेगा, एक दूसरी साइड पे लगेगा, दोनों अपोजिट रहेंगे तो वो उसमें मूवमेंट होना चाहिए। फिर एक आप एडी करंट के लिए भी, अच्छा एक चीज और है कि जब हम कहीं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो हमारे पास पोर्टेबल सिस्टम होना चाहिए कि एक उसको छोटे से झोले में रख के हम जो है कहीं चले जाएं। अगर सिस्टम बड़ा है तो हमारे पास वाहन होना चाहिए। तो ये एक एल्यूमिनियम पाइप है और इसकी थिकनेस है कुछ, और इससे हम जो है एडी करंट का डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। उसे हम बताते हैं कि फेराडे का फर्स्ट लॉ जो है वो ये बताता है कि अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ, यदि वहां कोई कंडक्टर रखा है या कोई मटेरियल रखा है। और ये सिंह मैडम के पास भी बहुत अच्छा सेटअप है। ये एक मेरे पास छोटा सा सेटअप है जिसकी मदद से आप इसमें एडी करंट को बता सकते हैं। अब इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए पहले तो हम इस एक पेन को नीचे गिराते हैं तो वो तुरंत आ जाता है इसमें नीचे। अब अगर ये 4 मैग्नेट हैं, अब ये मैग्नेट आपको तय करना है कि 1 लेना है या 2 लेना है या 3 लेना है या 4 लेना। तो आप ये मार्केट में 30 रुपए या 20 रुपए ईच मिल जाता है। अब इस मैग्नेट को अगर इसमें से हम छोड़ते हैं, ये मैग्नेट के नंबर्स जो है ये इस हिसाब से तय कर लें कि ये इस पाइप में से जब गुजरे, इस एंड से गुजर के इस एंड से निकले तो इसमें कुछ ज्यादा समय लगे। देखिए इसको हम कोशिश करते हैं। इसने कुछ टाइम लिया, शायद आपको वहां से दिख नहीं रहा होगा। दिखता है सर। अगर मैग्नेट बढ़ा लेंगे तो ये थोड़ा कम समय लेता है। हम कुछ ज्यादा कर लेते हैं। तो आप इसको देखिए कि इस पाइप में से गुजरने में जितना अधिकतम समय ले, तो उसको आप इसकी मदद से बता सकते हैं कि जब ये मैग्नेट यहाँ से यहाँ तक मूव होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अगर हम एडी करंट ले रहे हैं तो इसमें क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होगा, उससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका अपोज करेगा। जो हमारा जो लेंज लॉ जो है, मतलब फेराडे का फर्स्ट लॉ तो आपको कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। सेकंड लॉ ये कहता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। देन दोनों लॉ ये नहीं कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी। तो लेंज लॉ जो है वो
ये बताता है कि अगर क्लॉकवाइज करंट है, किसी सर्कुलर कॉइल में क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो वहां साउथ पोल होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल होगा। तो लेंज लॉ की एक विशेषता ये है कि ग्रामीण बच्चों को जो समझाना, मुझे एस के जोशी साहब जो रतलाम वाले हैं उन्होंने बताया कि यदि आप फिजिक्स के हिसाब से यदि नॉर्थ पोल को किसी कॉइल के नजदीक ले जाते हैं तो उस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, पर उस कॉइल में करंट इस तरीके से फ्लो, क्लॉकवाइज करंट फ्लो हुआ कि उसमें साउथ पोल आ जाए। मतलब वो कॉइल जो है, इस मैग्नेट जो नॉर्थ पोल अगर जा रहा है तो उसमें कॉइल में भी नॉर्थ पोल बनेगा, मतलब वो उसके मूवमेंट मोशन का अपोज कर रहा है। तो उनका ये कहना था कि आपने किसी गेस्ट को बुलाया, तो जब वो आपके यहाँ आए तो आप उससे कहो कि मत आओ। तो जब आप उस मैग्नेट को दूर ले जाते हैं तो दूर ले जाने पे अगर ये नॉर्थ पोल फेस कर रहा है कॉइल को तो उसमें साउथ पोल कॉइल में बन जाता है। तो जब वो दूर जाता है तो आप उससे बुलाइए कि अब आप आ जाइए। तो ग्रामीण परिवेश में फिजिक्स जो है, गांव में टीचर्स जो है अपने तरीके से भी समझाते हैं। तो ये कुछ चीजें थी मेरे पास जो मैंने आपको बताई। एक और है एंटी ग्रेविटी टेस्ट ट्यूब। मेरे ख्याल से टाइम हो गया मैडम। सर ये वाला बता लीजिए, ये वाला एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये दो टेस्ट ट्यूब है। ये बड़ी वाली टेस्ट, ये छोटी वाली टेस्ट ट्यूब तो आपको 5 रुपए में किसी भी शॉप से मिल जाएगी। ये जो टेस्ट ट्यूब है, ये दोनों बोरोसिल की हैं। तो ये टेस्ट ट्यूब की डायमेंशन है 18 मिलीमीटर, इसका इनर डायमीटर है, और 150 mm जो है इसकी लेंथ है। 27 मिलीलीटर वाटर इसके अंदर आता है। ये टेस्ट ट्यूब जो है वो मार्केट में आसानी से नहीं मिलती है, आपको किसी लैब में मिलेगी। तो इन दोनों टेस्ट ट्यूब में विशेषता ये है कि ये टेस्ट ट्यूब को आप इस टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर रख सकते हैं, ये इजीली मूव होती है। और अब इसमें ये होता है कि ये जो टेस्ट ट्यूब है, एंड इसका नाम वैसे लोगों ने एंटी ग्रेविटी दे रखा है, मतलब ये टेस्ट ट्यूब और ऊपर की ओर जाएगी तो ऐसे तो संभव नहीं है, कुछ इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने एक ट्रे ली है ये, और इस बीकर में थोड़ा पानी लेते हैं और इस बड़ी टेस्ट ट्यूब में मैं ये पानी भर देता हूँ। अभी छोटी टेस्ट ट्यूब में इस तरीके से इस पर रखता हूँ, दिख रहा है मैडम क्लियर? हाँ जी। और इस सेटअप को उल्टा कर देता हूँ। देखिए अब अंदर वाली जो टेस्ट ट्यूब है वो धीरे धीरे ऊपर जा रही है। वाह। ये दिखा मैडम क्लियरली कुछ? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर दिखा। देखिए ये टेस्ट ट्यूब अंदर हो गई और इसमें ऊपर जो है कुछ पानी बच गया। इसको एक बार फिर से करके बताता हूँ। हाँ जी सर। अब मैंने इसको छोड़ दिया, अभी ये ऊपर नहीं जा रही है, पानी धीरे धीरे इसमें से बाहर आ रहा है।
थोड़ा वेट करते हैं, अपने आप धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू होगी। देखिए ये ऊपर जा रही है। एक्चुअली इन दोनों टेस्ट ट्यूब के बीच में बहुत ही कम गैप है। जब इस टेस्ट ट्यूब को पानी से भर देते हैं और ये टेस्ट ट्यूब इसमें ऐसे रख के इसको ऊपर कर देते हैं तो पानी का थोड़ा लीकेज होता है और दोनों टेस्ट ट्यूब के बीच में एक वाटर सील बन जाती है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरता रहता है। तो ऊपर वाली टेस्ट ट्यूब में चूंकि यहाँ वाटर सील बन चुकी है तो ऊपर वाली टेस्ट ट्यूब में से पानी जब नीचे गिरता है तो यहाँ कुछ निर्वात हो गया, वैक्यूम हो गया। ये नीचे वाली टेस्ट ट्यूब जो है ऊपर की ओर शिफ्ट होती है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आज आपको बताना चाहता था। सर बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट रहे, बहुत ही बढ़िया। कुछ बच्चों के डाउट्स हैं सर। हाँ बिल्कुल मैडम। हाँ, एक डाउट है, बच्चे ने पूछा है, एक श्याम गुर्जर करके स्टूडेंट है, उसने पूछा है सीढ़ी में छेद करके धागों की मदद से पत्थर बांध कर भी क्या हम कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट सीढ़ी वाला? पत्थर बांधना है, पहले धागा बांधना है। लिखा है, फिर से पढ़ रही हूँ सर। सीढ़ी में छेद करके धागों की मदद से पत्थर बांध कर भी कर सकते हैं क्या? क्या? बिल्कुल। अच्छा, देखिए मैंने जो दोनों हाथ बनाए वो ये क्लिप से बनाए जो कि हम कपड़े सुखाने के काम में लेते हैं। तो इनका वजन बहुत कम है। अगर वो कम वजन ले उसमें थोड़ी मेहनत तो लगेगी। हो सकता है वो। अच्छा, कोशिश करने पे हो सकता है। ओके सर। सर दूसरा प्रश्न है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टर्न्स कॉपर वायर वी यूज इन फैराडे एक्सपेरिमेंट? आप 100 टर्न्स भी ले लीजिए तो वो भी काम करेगा। अच्छा, ये ट्रायल, ये एक्चुअली मैंने भी नहीं गिने, ये मेरे पास कहीं से आया। एक्चुअली क्या हुआ मैडम कि मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। और इसमें एक मरवा साहब भी हैं। हाँ मैं जानती हूँ मारवा सर। और जबलपुर में एक कमल कुशवाहा हैं। अच्छा सर, ओके। और तो कहीं न कहीं से मुझे सामग्री जो है, तो इस कॉइल में कितने टर्न्स है, पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर 50 टर्न्स भी ले लिए जाएं और अंधेरा करके एलईडी में ग्लो आ जाएगा। ओके सर, वैसे तो जितने ज्यादा टर्न लेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना अच्छा दिखेगा। हाँ जी, हाँ जी। सर एक और क्वेश्चन है। हाँ सर, हैव डाउट अबाउट दैट एक्सपेरिमेंट यू परफॉर्म विद बेल्ट एंड कार्डबोर्ड। हाँ प्लीज एक्सप्लेन हाउ सेंटर ऑफ मास वाज बैलेंस्ड इन दैट। सेंटर ऑफ मास उन दोनों, वो जो बेल्ट की जो लेग्स हैं दोनों, उसके बीच में से कहीं गुजरता है। वो कोशिश करने पे वो ये एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है, इसमें कहीं कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगी। पर वो सेंटर ऑफ मास जो है वो बेल्ट दोनों तरफ लटका रहता है, तो उसके बीच में से कहीं इस तरीके से गुजरता है कि वो क्वेश्चन मार्क जो है वो फिंगर टिप पे लगा रहता है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what would be the temperature of water, what should be the temperature of water आपके लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट में, एंटी ग्रेविटी वाले एक्सपेरिमेंट में क्या टेम्परेचर होना चाहिए कि नॉर्मल टेम्परेचर है? मैडम आज में इंदौर से देवास का टेम्परेचर 1 डिग्री कम रहता है। अच्छा। और इसको मैंने महू में जब डेमोन्स्ट्रेट किया था तो गर्मी थी वहां पर। अच्छा। तो इसमें टेम्परेचर से थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता होगा, पर इतना फर्क नहीं पड़ा। डेमोन्स्ट्रेशन में कहीं दिक्कत नहीं आती। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इट इज ए रिक्वेस्ट, कैन यू प्लीज रिपीट द एक्सपेरिमेंट ऑफ बेल्ट एंड कार्डबोर्ड? नहीं, मैं करने वाला था। कर दीजिए सर एक बार। बिल्कुल कर देते। विक्रम मंडलोई बीएससी सीएस का स्टूडेंट है हमारा, उसका रिक्वेस्ट है। बिल्कुल।
देखिए इसमें जिसकी जो टेक्निक है, यहां पर आपको एक नॉच मिलेगा, ये अंदर की ओर जाता है। इसमें बेल्ट को आपको थोड़ा सा फिक्स करना है। अगर इसमें बेल्ट को फिक्स नहीं किया और खाली इसी एरिया में रखा तो ये गिर जाएगा। और अगर आप इसको आसानी से करना चाहते हैं तो बेल्ट के 2 हिस्से कर लीजिए, इसको यहां फिक्स कीजिए और ये इस पे टिक जाएगा आसानी से। आप इसको बिल्कुल एंड, आपकी फिंगर के बिल्कुल एंड पे रखिए तो भी टिकेगा। एक्चुअली ये कोरोना वाला पीरियड है, अदरवाइज ये एक्सपेरिमेंट जो है बच्चे खुद करते हैं। जब मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूं तो एक बच्चे की उंगली पे रख देता हूँ, पूरी लैब में जो है क्लास में घूमता रहता है। मेरे ख्याल से मंडलोई जी को दिख रहा होगा पूरा। मैं कोशिश करता हूँ दिख रहा है सर, दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। कोशिश कर रहा हूँ कि इसका क्लोजअप दिखे कुछ। देखिए ये उंगली पे रखा हुआ है और ये नॉच में जो है ये बेल्ट मैंने फिक्स कर दिया है। और ये दोनों तरफ लटके हुए हैं। और ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन मार्क है वो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा एक स्टूडेंट है जो HC वर्मा साहब का भी बहुत प्यारा स्टूडेंट है, कमल कुशवाहा, उससे मुझे मिला है। तो जिन लोगों, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा पर्टिकुलरली जो MSc फिजिक्स कर रहे हैं या जो BSc में पढ़ रहे हैं वो BSc करने के बाद कहीं पर भी जाएं। हो सकता है IT इंजीनियर बन जाए या कुछ भी बन जाए, बैंक में चले जाएं, पर अगर थोड़ा सा इन फिजिक्स के सेटअप को डेवलप कर लें जिनमें कुछ विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ये सामग्री आपको अपने आसपास ही मिल जाएगी। और जब भी समय हो किसी छोटे से स्कूल में चले जाएं, 20-25 बच्चों को जो है वो इकट्ठा कर लें और अगर उनको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे तो बच्चों को मजा आएगा, फिजिक्स समझने में भी इंटरेस्ट होगा। बच्चों को ऐसा नहीं लगेगा कि फिजिक्स जो है वो ड्राई सब्जेक्ट है, इसमें भी जो है बहुत कुछ किया जा सकता है। तो आज मैंने इसलिए फिजिक्स पे कम ध्यान दिया, मैंने ये इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया कि इसको कैसे बनाएं ताकि ये जो है आसानी से लोग इसको तैयार करके डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। और अगर किसी को कोई सेटअप चाहिए तो मैं उनको फ्री ऑफ ऐसे ही बना के दे सकता हूं। अगर वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहें तो एक सेट मिल सकता है, बस शर्त ये है कि उन्हें आगे उस पर काम करना होगा। मैं गांव में जब जाता हूं तो करीबन 300-400 रुपए के मैग्नेट लेके जाता हूँ। गांव में मैग्नेट नहीं मिलते, बाकी सामग्री मिल जाती है, तो वो बच्चे जो हैं जिनके पास मैग्नेट नहीं मिल सकता उनको मैग्नेट दे के आते हैं। क्योंकि IAPT ये चाहता है कि फिजिक्स में बच्चों की रुचि बढ़े, फिजिक्स की जो एग्जाम्स हैं उसमें जो कंपटीशन वगैरह होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें लोग। और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस एक तो मुझे आपने एक्सपर्ट बना दिया ये शो करने के लिए। सर एक और रिक्वेस्ट आई है, सॉरी सर टू इंटरप्ट यू। हाँ बोलिए। फैराडे लॉ वाला एक्सपेरिमेंट का वो क्लोजअप देखना चाह रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन। फैराडे लॉ जो आपने वो लाइट ऑन ऑफ करके दिखाया था, ऑफ कर दी थी लाइट, वो वाला। ठीक बिल्कुल वो बता सकते। पास से क्लोजअप दिखा दीजिए सर। बिल्कुल क्लोजअप दिखाते हैं। ये देखिए आप, ये एक इनविटेशन कार्ड है, पेपर है, इसका पाइप बना लिया मैंने और इसमें ये थोड़े लंबे वाले मैग्नेट लिए। सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट थोड़ा सा ऊपर करिए सर, थोड़ा सा ऊपर। हाँ सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हैं
और इनका डायमीटर कम है, तो ये इस पाइप में जो है आसानी से इनका मूवमेंट होता है। और इसमें एक एलईडी लगा रखा है, और मेरे ख्याल से कुछ ग्रीन कलर दिखा। हाँ सर, दिखा सर। ठीक है सर, यस, ओके सर। तो आप इसमें 100 टन ले लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। जितने, वैसे आपका कहना भी सही है कि जितने ज्यादा टन्स लेंगे हम, उतना जो है इसमें मेरे ख्याल से आप अब ज्यादा अच्छा दिख रहा है। जी सर। क्योंकि मैंने इस तरीके से अभी एकलव्य पायलट प्रोजेक्ट में कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन तो किए थे, पर उस समय भी इसी तरीके से, उस समय थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये इतने अच्छे से बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं। एक मोबाइल स्टैंड चाहिए, वो मोबाइल स्टैंड में लेके तो आया था, पर वो इतना हल्का था कि वो उसकी लेग्स जो है वो टूट गई। तो आज मैंने ऐसे ही किताब के ऊपर इसको जमा के एक सेल आगे रख रखा है, और उसको मतलब जो है मैं, और कोई चीज देखना है बच्चों को? सर एक और क्वेश्चन है, ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इनर ट्यूब पे फोर्स लगानी पड़ती है क्या? हाँ, देखिए क्या होता है, आपने इसको यहां तक भर लिया और इसको ऐसा रखिए, वो फिर इसको उल्टा कर दीजिए और इसको थोड़ा सा अंदर इसलिए रखिए कि नहीं तो ये इनर ट्यूब गिर जाएगी, फिर इसको छोड़ दीजिए। तो ये पहले तो 1-2 मिनट बिल्कुल ऐसे ही रहेगी, क्योंकि वो लीकेज बहुत स्लो रहता है। जैसे जैसे लीकेज बढ़ता जाएगा ये ट्यूब अपने आप अंदर जाने लग जाएगी। फोर्स आपको लगाने की नीचे से जरूरत थोड़ा नहीं। सा फोर्स देना पड़ता है बस, हल्का हाँ, सा। शुरू में आपको थोड़ा सा अंदर रखना पड़ेगा इसे। ओके अगर अंदर नहीं रखा तो वो ट्यूब जो है नीचे गिर जाएगी। ओके, ठीक है सर। ये जब आप करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके सर। और गूगल पे आप सर्च करिए, आपको बहुत सारे सेटअप मिलेंगे, और कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिसमें फ्री एनर्जी वाले हैं, जिन पे आप कोशिश मत करिए, क्योंकि वो सब जो है काम नहीं करते हैं। कि मतलब जो है बगैर किसी सप्लाई के हमें एनर्जी मिल जाए, या एक किसी मैग्नेट पे कॉइल लपेट दी और उसमें एक एलईडी लगा दिया, तो वो बल्ब लगा दिया तो वो ग्लो नहीं होगा। कहीं ना कहीं उसमें कुछ गड़बड़ रहती है। उसमें एक छोटी बैटरी कहीं ना कहीं जो है बटन सेल लगा होता है। ओके सर, देन थैंक यू सर। आपने जो एक्सपेरिमेंट डिजाइन किए वो वाकई बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल तरीके से आपने समझाया। आपका जो मोटो है स्पेशली कि ग्रामीण के बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे, स्कूल के बच्चे जो सीखें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स, वो वाकई काबिले तारीफ है। आपके एक्सपेरिमेंट्स रियली बहुत सस्ते हैं और आप इनको घर पर ही बना सकते हैं। आपने ये जो भी एक्सपेरिमेंट्स दिखाए, वाकई ये फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे कि लॉरेंट्ज फोर्स है, सेंटर ऑफ मास है, एडी करंट है, लेंस लॉ है, आपने मैग्नेट के बीच में रिपल्शन फोर्स है, हमारा एंटी ग्रेविटी टेस्ट ट्यूब है। आपने वाकई बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया और पार्टिसिपेंट्स की भी बहुत तारीफ आ रही है। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आपकी इसकी तारीफ कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन करेंगे। और नहीं, उत्तम शर्मा सर ने ज्वाइन किया, बैठे हुए हैं वो। अच्छा, उनको भी बोलती हूँ मैं एक मिनट, है ना। और वाकई आपने जो किया है इससे मेरे को लगता है हमारे पार्टिसिपेंट्स का फिजिक्स की तरफ अट्रैक्शन जरूर बढ़ेगा और वो जरूर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहेंगे। मैडम, आईपीएस के जो स्टूडेंट्स हैं, हाँ जी, उनके लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि वेलेंकर साहब वहां पर हैं
हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने आज जो है फिजिक्स पे बात नहीं की कि एनर्जी कहाँ से आएगी और कहाँ जाएगी और वो कैसे क्या होगा। तो वेलनकर साहब इस बारे में बहुत अच्छा जो है समझाते हैं, तो वो उनसे संपर्क करके वो चीजें जो हैं हाँ जी, जरूर से सर। वो कर लेकिन सकते आपको हैं। एक अच्छी बात बताएं, ऑल ओवर इंडिया से 206 पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया हाँ हमारे है। बच्चों के अलावा भी। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे फिजिक्स की कम्युनिटी बहुत एक्टिव है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है इस तरह के शोज में और वर्कशॉप्स में, वेबिनार्स में। तो ये बहुत ही तारीफ काबिल है सर, वाकई अच्छी बात है। और मैं अब उत्तम शर्मा सर हैं क्या? मयंक सर, हाँ उत्तम मेरे शर्मा को सर दिख को रहे हैं उत्तम प्लीज शर्मा अनम्यूट सर। कर दीजिए। उत्तम शर्मा सर हैं क्या प्लीज? उत्तम हाँ, शर्मा, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसा लगा सर अ, हमारा सेशन? मैडम मैं आई वॉज ट्रेवलिंग, इसलिए मैं शुरू में 10 मिनट ज्वाइन नहीं कर पाया था, कोई पर बात नहीं उसके सर। बाद से मैं पूरा लेक्चर सुन रहा हूँ सर का। एंड मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा वेलनकर सर को, और वेलनकर सर के मोटिवेशन से जो दुबे सर ने ये हमेशा ही दुबे सर अच्छे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को लेकर अच्छे लेक्चर देते हैं। तो मैं बधाई देना चाहूँगा आपको, डॉक्टर उषा सिंह मैडम को और डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी सर को, कि उन्होंने एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर ये जो एक्सपर्ट सीरीज के लेक्चर स्टार्ट किए। इसके लिए मैं आईआईपीटी के सेक्रेटरी के कैपेसिटी से आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा। दुबे सर का विशेष तौर पर धन्यवाद। दुबे सर ने जैसा बताया कि वह हमेशा ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, फिजिक्स के प्रसार प्रचार के लिए दुबे सर हमेशा तैयार रहते हैं। और दुबे सर ने एक जो जैसा आपने बताया कि कम कीमत में फिजिक्स के बेसिक एक्सपेरिमेंट को किस प्रकार से हर बच्चे तक पहुंचाया जा सकता है, और आईआईपीटी का और आईपीएस का बेसिक मोटिव भी यही है कि आप फिजिक्स के पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो फिजिक्स के जो बेसिक एक्सपेरिमेंट है जो आप घर पर उपलब्ध सामग्री के साथ बना सकते हैं, और अपने आसपास जो बाकी हमारे सब तरफ फिजिक्स है बस उसको बताने की हमें जरूरत है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वेलनकर साहब का, दुबे साहब का, त्रिपाठी साहब का, और मैडम आप। थैंक यू सर, थैंक यू। मैडम एक बात मैं कहना चाहूंगा, हाँ जी सर। ये आईएपीटी की जो गतिविधियां हैं हाँ जी इसमें सर। जो हमारे भीष्म पितामह हैं वेलनकर साहब, उन्होंने ही मुझे इसमें इंट्रोड्यूस किया। और मेरे साथ जो है पीके शर्मा साहब हैं, बीडी श्रीवास्तव जी हैं। ये लोग ऐसे हैं कि जब भी इनसे कहो कि नीमच चलना है या रतलाम चलना है, आपका भी सहयोग हमेशा मिलता रहा। तो सुबह निकलते हैं और रात को वापस आते हैं। तो इंदौर में आईएपीटी को चाहने वाले प्रोफेसर्स काफी हैं, और मैं हर जगह बोलता हूं कि आप आईपीएस की विजिट जरूर करिए, कि वहां आपको शराब साहब के द्वारा बनाई गई बहुत सारी चीजें हैं, और अभी प्रोफेसर्स भी बहुत अच्छे हैं, ताकि आपको चीजें देखने को मिलेंगी। सर हमारे लिए यहाँ तो ओपन है, बस जब ओपन भी है। आना चाहें हमारे एचओडी सर से परमिशन ले लें और बच्चे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये त्रिपाठी है जी कि कभी एचओडी सर से परमिशन लेके त्रिपाठी जी कभी मना नहीं आ करते, जाएं। बस उनके पास फोन जाना चाहिए। हाँ हाँ, फोन जाएगा तो बस अपॉइंटमेंट, क्योंकि हम लोग भी उस समय फ्री होने फ्री होना चाहिए। चाहिए। तो त्रिपाठी सर का तो सर बहुत ही ज्यादा सहयोग है, उसमें कोई बात ही नहीं है। हाँ। बट ये है कि हम लोग फ्री हों, उस हिसाब से वो समय दे दें जी बस। जी। तो हम त्रिपाठी चाहते सर हैं से सर कि परमिशन ज्यादा ले से लें तो ज्यादा कोई लोग आए दिक्कत और नहीं। आपको विजिट करें हमारे कॉलेज में। हम तो एकदम वेलकम करते हैं सबको, और जो भी सुन रहे हैं वो जब भी आना चाहें वो आ सकते हैं, बिल्कुल। चलिए आज इस प्रोग्राम को अब हम एंड करते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन था सर। मैं अब डॉक्टर दीपी जैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वोट ऑफ थैंक्स बोलें। दीपी मैडम प्लीज। मयंक सर, दीपी मैडम को अनम्यूट कर दीजिए। Am I audible now? हाँ, हाँ यस जी हाँ। मैडम। On behalf of organizing committee, I, Dr. Deepi Jain, extend my vote of thanks to the Speaker of Day, Dr. Pradeep Kumar, for sharing wonderful experiments of physics with us. I am thankful to IIPT RC9, IQSC IPS Academy for their initiative in organizing this event. My thanks to Acting Director ISR, Dr. Pradeep Joshi, HODs of all departments, faculty members present here, all the students for being with us.
My special thanks to Dr. Jitendra Tripathi, HOD Physics, for motivating us for organizing this event. Last but not least, my thanks to Dr. Usha Singh, Mr. Mayank Sharma, each and every member of Department of Physics and Management IPS Academy for their direct and indirect support. Thanks once again. Thank you. थैंक यू दीप्ति मैडम। ओके सर, मीटिंग एंड करें सर? बिल्कुल मैडम, थैंक यू वेरी मच। त्रिपाठी जी Okay, धन्यवाद thanks a lot. बहुत बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू उत्तम सर। बहुत शानदार Thank you, प्रोग्राम, बहुत sir. लोग आ गए। थैंक यू मैडम। थैंक यू, थैंक्स Sir, टू ऑल 200 पार्टिसिपेंट्स। 216 थे मैक्सिमम। या हाँ और करिए इसमें एक कार्यक्रम मैडम आप। सर ये तो लेक्चर जी सीरीज है, सर, 6 सॉरी महीने सर, चलानी सुनाई है नहीं करीब। और कार्यक्रम करिए इसमें क्या? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। मैडम इसकी रिकॉर्डिंग जो है अपने को डालना है, ताकि वो मेरे पास कई लोगों के फोन आए। अच्छा जी सर, तो मैं रिकॉर्डिंग मयंक सर को बोल दूंगी सर। हाँ। तो किस पे डालना है? अपने IAPT के उसमें डालना है ना? हाँ, IAPT के इसमें डाल देंगे, उसमें एक कवर पेज बना के डाल देंगे। अच्छा ठीक है, तो आपको हम भेज देंगे। हाँ, आप तो भेज आप कर दीजिए, दीजिएगा बिल्कुल। सर। क्योंकि हाँ? मरवा हाँ जी, साहब ने ठीक है स्पेशली सर। बोला था कि अगर मैं नहीं आ पाया तो फिर मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा। हाँ जी सर, मैं मैंने- जरूर से मैंने भिजवा उनसे दूंगी। कहा कि आप एक दो दिन का समय नहीं दीजिए। नहीं, वो एक सप्ताह बाद लगा देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। ओके, सब थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। Thank आई एम you. एंडिंग द मीटिंग नाउ। थैंक यू ऑल।